अगर किसी मदर में डायबिटीज है तो आप कितना % चांस इंक्रीज देखते हो सी सेक्शन का? व्हाट आर द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स वुमेन शुड नो दैट दे कैन हैव इन द प्रेगनेंसी? You have to optimize any medical conditions before you're planning a pregnancy, be it diabetes, be it hypertension, be it thyroid disorders, hypothyroidism या hyperthyroidism, kidney diseases, liver diseases, in fact rheumatic heart diseases. A lot of women with rheumatic heart diseases also conceive. Anemia. So ये जितने भी disorders हैं इनका ऑप्टिमाइजेशन करके ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. व्हाट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कब हम डायग्नोज करते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं? एज ए पीडियाट्रिशियन आई नो कि हाँ थायराइड इज मस्ट फॉर द बेटर डेवलपमेंट, अदरवाइज काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं. बट मदर को कुछ इशू होता है अगर वो नहीं लेती है, अनकंट्रोल्ड होता है थायराइड तो, और हाइपरटेंसिव है मदर, सो बच्चे की ग्रोथ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लेसेंटल फ्लो पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका मतलब रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं हम डॉपलर और वो सारा, इसमें कुछ डिफरेंस है कि मतलब जो हाइपरटेंसिव मदर है उसको और फ्रिक्वेंटली डॉपलर कराना चाहिए? पेशेंट्स को बताते हैं ना कि डिलीवरी ड्यू डेट से 3 हफ्ता पहले करेंगे. इट इज सो मच ऑफ पैनिक. But then delivery no later than 37 weeks, and these are international recommendations. There is no doubt about it. Welcome Dr. Bhumika to this parenting prescription podcast series, and I'm so happy to chat with you because this is my favorite topic, discussing and educating women around the women health. And to all listeners, Dr. Bhumika Bansal is director and head of Obs and Gynae in Max Lucknow, and she's also robotic and laparoscopic surgeon, and she's creating amazing content on Instagram and educating mothers regarding the women health and pregnancy and post-pregnancy and all those issues women feel. So welcome Dr. Bhumika Bansal to this podcast. Thank you so much, Dr. Sumitra. In fact, this is the first time I'm doing such a session with a pediatrician, and I'm sure it's going to be very fruitful for our listeners. Yes. So I was looking at your Instagram page, and you're creating so amazing content around the chronic disorder of the pregnancy. So I was thinking कि उसी पे डिस्कशन करते हैं, उसी को डीप में डिस्कस करते हैं, and let's educate women around that. So first I want to ask that what are the chronic disorders women should know that they can have in the pregnancy? It is about optimizing the pre-existing diseases before you are planning a pregnancy. तो हम लोग कभी भी प्रेगनेंसी केयर की बात प्रेगनेंसी से नहीं स्टार्ट करते हैं. It is generally pre-conceptional care that all women should seek. So you have to optimize any medical conditions before you're planning a pregnancy, be it diabetes, be it hypertension, be it thyroid disorders, hypothyroidism या hyperthyroidism, kidney diseases, liver diseases, in fact rheumatic heart diseases. A lot of women with rheumatic heart diseases also conceive. Anemia. So ये जितने भी disorders हैं इनका ऑप्टिमाइजेशन करके ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए. राइट, यू सेड राइटली. सो इनमें मैं पिक करूँगी 3 टॉपिक आज के लिए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, बिकॉज आप भी डे टू डे उसमें देखते हो कि बहुत सारे वुमेन आती हैं इसके साथ में कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म, इनफैक्ट हाइपोथायराइडिज्म तो मैं एवरी अदर वुमेन में देखती हूँ, मुझे भी था हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट आई विल कवर डायबिटीज़ की. डायबिटिक जो मदर्स होती हैं, मतलब कैसे उनको पता चलेगा कि दे कैन हैव GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़, एंड कब उनको अलार्म होना चाहिए कि हाँ, कब उनको टेस्ट के लिए बेसिकली सोचना चाहिए कि हाँ अब ये दिस इज़ द राइट टाइम, आई शुड गेट टेस्ट डन फॉर द डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़. शुरू से स्टार्ट करते हैं. मैंने बात करी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की. So every woman who's planning a pregnancy should get a basic blood work done, क्योंकि डायबिटीज इंडिया में अब बहुत कॉमन है, and around 20 to 30% women in middle and upper middle socio-economic classes are suffering from gestational diabetes. Oh my God. तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बेसिक ब्लड वर्क, जैसे आपका ब्लड काउंट है, CBC है, लिवर फंक्शन है, किडनी फंक्शन है, शुगर्स है, थायराइड है, एक यूरिन रूटीन है, इतने सारे टेस्ट करा के प्रेगनेंसी प्लान करें. Women who are aware that they are diabetic to begin with, type 2 डायबिटीज है,
तो वो प्रेगनेंसी तभी प्लान करें जब उनका HbA1c 6.5 से कम है. ओके. Also, before planning a pregnancy, they should switch to pregnancy safe drugs. जैसे कि प्रेगनेंसी में metformin is a reasonable drug to be given, Yes, yes, and yes. glyburide is a reasonable drug to be given. So you should discuss this part with your endocrinologist and switch to drugs which are safer in pregnancy. क्योंकि अगर आप 6.5 से कम HbA1c पे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस का रिस्क या जो बच्चा बन रहा है उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का रिस्क काफी कम हो जाता है. So this is one part. The second thing is, once you are pregnant, then there are certain timings in your pregnancy wherein we test you for diabetes. एक बुकिंग पे रैंडम ब्लड शुगर एंड HbA1c ये करवा सकते हैं या फास्टिंग PP करा सकते हैं. रैंडम ब्लड शुगर की कट ऑफ 200 है, HbA1c मोर देन 6.5 अगेन. फास्टिंग कभी भी 92 के ऊपर है, इट इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग यू अ डायबिटिक इन प्रेगनेंसी. सो देन प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज फर्स्ट टाइम डिटेक्ट होता है तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं. जेस्टेशनल डायबिटीज होता है इस वजह से है क्योंकि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो आपके इंसुलिन को काम करने से रोक देते हैं. दे क्रिएट एन इंसुलिन रेजिस्टेंस इन योर बॉडी एंड अ लॉट ऑफ women suffer from this. Women who are PCOS are at risk, women who are obese are at risk, women who have a family history of diabetes are at risk. जिन्होंने पिछली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज जिनको रही है या जिनका बच्चा मैक्रोजोमिक रहा है, 4 kg के ऊपर का बेबी डिलीवर किया है या बिग बेबी डिलीवर किया है, ऑल दीज women are at risk of developing diabetes in pregnancy and have to be very carefully tested. से फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट विजिट पे डायबिटीज की टेस्टिंग नेगेटिव आ गई है तो फिर 24 से 28 वीक्स के बीच में 75 ग्राम्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना ही चाहिए. तो इस टेस्ट में हम तो इस टेस्ट में हम फास्टिंग सैंपल करते हैं. 75 ग्राम्स ग्लूकोज आप लेते हैं, 1 घंटे और 2 घंटे पे टोटल 3 सैंपल्स निकलते हैं. इस दौरान आप कुछ और नहीं खाते हैं. अगर इनकी वैल्यूज गड़बड़ हैं then again we diagnose you as a gestational diabetic. इसके अलावा अभी जो मॉडर्न recommendations हैं या जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट फॉलो करते हैं, आगे चलकर किसी भी स्टेज में अल्ट्रासाउंड में कुछ फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि बच्चे के आसपास का पानी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड है, या बच्चे की ग्रोथ आपकी पीरियड ऑफ जेस्टेशन से ज्यादा मिल रही है हमें, या कुछ और साइंस मिल रहे हैं, इनफोल्ड थिकनेस ज्यादा मिल रही है. फिर आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन वापस से आपको ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या किसी प्रकार से शुगर की टेस्टिंग एडवाइस करेंगे. सो दिस इज हाउ वी डायग्नोज जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी. ओके, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. सो इसी पे मैं मतलब नेक्स्ट आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब आपने जो बहुत अच्छी बात की कि प्री नेटली ही विमेन को टेस्ट करना चाहिए. मतलब सारे टेस्ट उनको जब वो कंसीव करने के सोच रही हैं तभी उनको एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, राइट? मतलब पूरा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी को कंट्रोल करना चाहिए, राइट? सो मान लो कि एक मदर अब ठीक है उसने नहीं कराया और आपने 20 to 24 वीक्स के बाद में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मिला और वो अनकंट्रोल्ड है, मतलब अभी तो उसको मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए? एक तो होगा कि डाइट में वो करेंगी, तो आप उसको थोड़ा सा मुझे एक वो भी बताएंगे हमारे लिसनर्स को कि डाइट में उनको क्या चेंजेस करने चाहिए. सेकंड चीज़ कि उनको आगे कौन सा स्टेप लेना है स्टेप वाइज कि वो कैसे उसको कंट्रोल अनकंट्रोल जो डायबिटीज उसको मिला है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बेबी पे और मदर पे होगा. तो फर्स्ट मदर को क्या करना चाहिए उसके लिए जैसे ही वो डायग्नोज होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका? तो अगेन आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में डायग्नोज किया. नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से हम मैनेज करते हैं. द फर्स्ट इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. आपको एक डाइट दी जाएगी जो कि आपके बॉडी वेट हाइट के अनुसार होगी. जनरली प्रेगनेंसी में कुछ 1600 से 1800 किलो कैलोरीज का हम डाइट देते हैं. द डाइट इज डिवाइडेड, द रेशियो शुड बी सच कि उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 25% प्रोटीन्स हो और 25% फैट से आपको जो भी कैलोरी आ रहा है वो इस तरीके से आए. मील्स के पोर्शंस को डिवाइड करते हैं. सो इट इज बेसिकली 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स. तो डायबिटीज में बड़ा ध्यान रखना होता है कि यू डोंट बिंज ईट
ताकि एकदम से ग्लूकोज स्पाइक्स ना आए. Hmm. एंड देन ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स का ध्यान रखना है. Hmm. इट इज लाइक इफ यू वांट टू हैव फ्रूट देन हैव द होल फ्रूट रादर देन टेकिंग फ्रूट जूसेस, Juices. क्योंकि फ्रूट जूसेस से स्पाइक बहुत जल्दी आ जाता है. आ जाता है. है ना. तो Right. 3 मेजर एंड 3 माइनर मील्स. मॉर्निंग में उठ के यू हैव समथिंग लाइक मिल्क एंड नट्स एटसेट्रा. देन यू हैव अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट. फिर एक मिड मॉर्निंग स्नैक है जिसमें फ्रूट सैलेड, स्प्राउट सैलेड, मखाने, छाछ, सूप, ये सारी चीजें हो सकती हैं. देन लंच इज अगेन योर मेजर मील. उसके बाद एक इवनिंग स्नैक हो सकता है. देन डिनर एंड देन बेड टाइम पे यू कैन हैव मिल्क और यू नो अ स्नैक देयर. So it is 3 major and 3 minor meals. Then comes the role of exercise. So exercise में या तो आप किसी के सुपरविजन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अदरवाइज कहते हैं लंच और डिनर के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करना चाहिए सो दैट वो ग्लूकोज का स्पाइक कंट्रोल में आ सके. एंड द थर्ड इज द फार्माकोथेरेपी, जो ड्रग्स या इंसुलिन हम आपको देते हैं. सो अगेन मेटफॉर्मिन इज कंसिडर्ड अ सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी. इसके अलावा अगर आपका शुगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर इंसुलिन. इंसुलिन अगेन बेड टाइम पे एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि आजकल लैंटस या लेविमिर इंसुलिन के नाम से आता है, और फिर 3 शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. लिस्प्रो ज्यादातर आजकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं. तो जस्ट बिफोर यू हैव योर मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उससे पहले आप ये इंसुलिन के शॉट्स ले सकते हैं टू टाइट्रेट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. मोटी मोटी बात यह है कि फास्टिंग रफली अराउंड 90 रहना चाहिए. अच्छा. और 2 आवर वैल्यू, खाने के 2 घंटे बाद की वैल्यू 120 के करीब रहनी चाहिए. अच्छा. ओके. तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज द रोल ऑफ मॉनिटरिंग. तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए मदर को बड़ा मोटिवेटेड होना है. खुद ही घर पर ग्लूकोमीटर से इंसुलिन पे है तो डेली मॉनिटरिंग करनी है. एंड मॉनिटरिंग इज एटलीस्ट 4 पॉइंट मॉनिटरिंग. फास्टिंग करेंगे, नाश्ते, लंच और डिनर के 2-2 घंटे बाद मॉनिटरिंग करेंगे. एंड यू विल बी इन डिस्कशन विद योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड योर ऑब्स्टेट्रिशियन. नेक्स्ट चीज है कि बच्चे की मॉनिटरिंग. फीटल मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद डायबिटीज. तो जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर आपका HbA1c अच्छा नहीं है तो बच्चे में स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशंस हो सकते हैं. देन कम्स द रोल ऑफ योर लेवल 2 स्कैन एंड फीटल इकोस. तो ये दोनों अल्ट्रासाउंड्स आपके होने चाहिए बच्चे में कार्डियक डिफेक्ट्स रूल आउट करने के लिए और इन जनरल स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशंस रूल आउट करने के लिए. राइट. तो लेवल 2 स्कैन या टीफा या नॉर्मली स्कैन 18 से 20 हफ्ते के बीच में, एंड अ फीटल इको बिटवीन 22 to 24 वीक्स. दिस इज इम्पोर्टेंट. इसके बाद रूटीन अल्ट्रासाउंड्स या डॉपलर्स के द्वारा बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड, उसके ब्लड फ्लोज और उसकी ग्रोथ, ये ट्रैक करनी चाहिए हमें. राइट. एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ डिलीवरी. 34 वीक्स ऑनवर्ड्स हम आपको NST लगाते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, जिससे बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो सकती है. एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल यू आर कंट्रोल्ड वी डिलीवर यू. अगर आप डाइट पे कंट्रोल्ड हैं तो हम 39 वीक्स पे डिलीवर करेंगे. सॉरी. इंसुलिन या ड्रग पे कंट्रोल्ड है तो हम 37 से 38 वीक से बीच में डिलीवर करते हैं. राइट. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज द न्यूनेटोलॉजी सेटअप. इन बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डॉक्टर सुमित्रा वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल अस. अक्सर बच्चे ब्रीथ नहीं करते हैं प्रॉपरली, सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, दे नीड to be put on oxygen. So we should be delivering such kids in a setup where the NICU is very good. Yes. So adding to that, Dr. Bhumika, that I have seen so many kids delivering, we call it diabetic mother, like GDM baby. So inme, as you said, macrosomia, large for gestational age baby, large for like weight more than 4 kg weight का बेबी हुआ है. फिर उसके बाद में दे कैन हैव हाइपोक्सिक इंजरीज ऑल्सो, बिकॉज लार्ज बेबी को निकालने में भी टाइम लगता है कई बार, एंड देन उसकी वजह से कई बार हाइपोक्सिया हो जाता है. सेकेंड, दे आर वेरी प्रोन फॉर द पोस्ट natal complications like hypoglycemia, hypocalcemia, hypomagnesemia. तो सीजर थ्रो करना, मतलब hypoglycemic seizure is very very common in these kids, so we have to monitor glucose. So there are certain guidelines for the glucose monitoring
इन विच ये भी आता है कि अगर बच्चा डायबिटिक मदर का है तो वी हैव टू मॉनिटर 0 2 6 8 मतलब एवरी 2 to 3 आवरली ग्लूकोज मॉनिटरिंग फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर्स, देन 48 आवर्स, देन 72 आवर्स, देन 96 आवर्स। एंड जब बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है तब हम मॉनिटर करके भेजेंगे उसको कि हाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ठीक है। सेकेंड, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत, हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे में सीजर हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, तो वो भी हमें मॉनिटर करना होता है। थर्ड, इनमें क्या होता है ना कि जो बच्चा बड़ा होता है प्लस जो ग्लूकोज का इफेक्ट होता है बच्चे में, उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया में जो हमारी रेगुलर जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती है बहुत मात्रा में, तो उसकी वजह से बच्चे का ब्लड थिक हो जाता है। एंड थिक होने की वजह से कई बार जो, अब वो ब्लड थिक है, इतनी सारी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होगी, राइट। एंड उसके बाद वो जो ब्रेक डाउन होगी उससे पीलिया वाला तत्व निकलता है, जिसको मतलब नॉर्मल उसमें पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो इन बच्चों में जॉन्डिस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर मदर का स्पेसिफिकली अनकंट्रोल्ड है डायबिटीज़, तो उस केस में होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज एज यू सेड अगर मदर प्रॉपरली गायने के उसमें है, डाइटिशियन के कांटेक्ट में है, ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, तो ये सारे इश्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। There's the need for surfactant to the kid, which is यस very important, यस और हम बहुत यस कॉमनली देखते हैं। यस बहुत डिस्ट्रेस यस होता है जन्म के बाद बिकॉज, पेरेंट्स को। हाँ बिकॉज उसमें डिस्ट्रेस होगा एंड देन वो ब्रीदिंग अच्छे से नहीं ले पाता है, बच्चे के लंग्स अच्छे से मैच्योर नहीं होते हैं, तो सर्फेक्टेंट इज वन, यू कैन से एक वो होता है, मेडिसिन होती है। मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि मेडिसिन होती है जिससे बच्चे के लंग्स फूलते हैं, मतलब जो बच्चे का लंग होता है उसको फुलाने में हेल्प करता है, जो अंदर की चीज़ होती है सांस लेने में हेल्प करता है। सो जो डायबिटिक मदर वाले बच्चे होते हैं वो कई बार डिलीवरी के बाद सांस नहीं लेते, अगर सांस नहीं लेंगे तो लंग्स नहीं फूलेंगे और उसकी वजह से बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, आईसीयू में रखना पड़ता है, कई बार वेंटिलेशन पे चला जाता है, तो उसकी वजह से उसको रोकने के लिए हम सर्फेक्टेंट देते हैं ताकि बच्चे को ब्रीदिंग में हेल्प मिल जाए। सो वो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं फ्रॉम और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिलीवरी से पहले स्टेरॉइड के 2 कोर्सेज दे सकते हैं मदर्स को, यस जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है, एंड देन अगेन यू रिक्वायर मोर एडमिशन एटसेट्रा। यस, एंड जो आप स्टेरॉइड देते हैं उससे लंग्स भी मैच्योर होते हैं बच्चे को। एंड स्पेसिफिकली अगर बच्चा प्री टर्म डिलीवर हो रहा है, लाइक यू सेड कि कई बार हमें 32-34 वीक्स पे डिलीवरी करनी पड़ती है डायबिटीज के केस में, तो उस केस में वी हैव टू गिव 2 डोजेज ऑफ स्टेरॉइड, एंटीनेटल स्टेरॉइड, जिससे बच्चे के लंग्स पहले ही मैच्योर हो जाएंगे, जिससे उसको बाद में ये जो इश्यूज होते हैं ब्रीदिंग वाले वो कम होंगे, सर्फेक्टेंट नीड कम होगी बेसिकली। सो इसी क्वेश्चन पे मैं डॉक्टर भूमिका ये पूछना चाहूंगी कि अगर मान लो ये तो कंट्रोल्ड है, कि अगर कंट्रोल्ड है डायबिटीज तो थोड़ा सा बेटर आउटकम है बोथ फॉर मदर एंड बेबी ऑल्सो, बट अगर अनकंट्रोल्ड है तो मदर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो? देखिए, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं तो अगेन एज आई सेड, बच्चे का स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशंस का, जेनेटिक मैल्फॉर्मेशंस होने का रिस्क है। वी हैव टू टर्मिनेट सच प्रेगनेंसीज, अगेन इट इज अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। यस बच्चे का वेट बहुत बढ़ जाता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, विच इज नोन एज अ मैक्रोसोमिक बेबी या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी। तो जो मदर्स नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर कर रही हैं उसमें अक्सर शोल्डर डिस्टोशिया हो जाता है, बच्चे का सर निकल जाता है बट नेक अटक जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ abnormal distribution of fat on the shoulders. So then there are a lot of injuries to the baby also, और मदर में भी पेरिनियल इंजरीज का चांस बढ़ जाता है। मैक्रोसोमिक बेबी है, आपको प्लांट कई बार सिजेरियन सेक्शंस कराने पड़ते हैं, वूंड हीलिंग प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अनकंट्रोल डायबिटीज में, चाहे abdominal स्टिचेस हैं, सी सेक्शन के स्टिचेस हैं, चाहे आपका एपिजियोटमी है, वूंड हीलिंग कैन बी अ प्रॉब्लम। एंड देन आगे चल के 50% केसेस में ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years प्लांट डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। ओके या ओके सो अगर किसी मदर में डायबिटीज है तो आप कितना % चांस इंक्रीज देखते हो सी सेक्शन का? बिकॉज यू सेड राइटली सेड कि मैक्रोसोमिया होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब अगर लार्ज फॉर जेस्टेशनल बेबी है। सो इन कंट्रोल्ड
अगर मदर कंट्रोल पे है तो कितना % चांस इंक्रीज हो जाता है, और अगर मदर अनकंट्रोल्ड है तो ऑफ कोर्स ज्यादा चांस इंक्रीज हो जाएगा सी सेक्शन का. सो तो अगेन आप डॉक्टर जो सुमित्रा, आई डोंट हैव द नंबर्स, क्योंकि नॉट हम लोगों नंबर, के मतलब आप जो डे टू डे बेसिस पे देखते हो आपके पास. एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे आजकल ना हम लोग आइसोलेटेड कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं देखते हैं. ओके. तो जैसे डायबिटीज के साथ प्रेगनेंसीज बहुत लेट आजकल महिलाएं प्लान कर रही हैं. इट इज मोस्टली 35 एंड बियॉन्ड. सो physically they are a little, not as active as they would be in their 20s or early 30s. So and then, as I said, diabetes is not the isolated disease that we see in these women. So sometimes they also have hypertension along with diabetes, या कोई और भी डिसऑर्डर है, प्लेसेंटल डिस्फंक्शन है, एंड में जाके डॉपलर्स खराब होने लगते हैं. C-section is required in a large number of such cases. मतलब I would not say कि अच्छा, इंडक्शन ऑफ लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप प्लान डिलीवरी करा रहे हैं अक्सर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर्स. I would roughly say around 75% of such women require delivery by C-section. Oh, okay. Yeah. That's very big number actually. For various other reasons. It is not just diabetes. Just As I said, हाँ. we rarely see just diabetes in pregnancy, right? It is a lot of other factors also which are there. Yeah, right. So coming to like your answer जो आपने की, हाँ, और बहुत सारी कोमोर्बिडिटी भी हम देखते हैं इन वुमेन में, एंड यू सेड हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द थिंग. सो कुड यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कब हम डायग्नोज करते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं मदर्स को, मतलब, एंड आई सॉ वन ऑफ योर वीडियो दैट बीपी कैसे मेजर करे घर पे कि अगर हाइपरटेंशन होता है मदर्स को. सो उसको अगर हम कवर कर सके हमारे जो वुमेन लिसनर्स हैं उनको. तो अगेन हाइपरटेंशन is of two types. एक है आपका chronic hypertension, which is a pre-existing hypertension. Yes. या तो प्रेगनेंसी से पहले हमें पता चल गया आप हाइपरटेंसिव हैं, आप ड्रग्स में हैं. तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मसला ये है कि आमतौर पे हम लोग एस इनहिबिटर्स या ARBs देते हैं महिलाओं में हाइपरटेंशन के कंट्रोल के लिए. जैसे कुछ ड्रग्स हैं, टेलमीसार्टन वगैरह, जो कि यूजुअली दी जाती हैं. ये ड्रग्स बच्चे के लिए बहुत अनसेफ होती हैं. बेबी के स्कल के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, किडनी के डिफेक्ट्स हो सकते हैं. तो प्री कंसेप्शनल मीट पे ये ड्रग्स डेफिनेटली स्विच हो जानी चाहिए इनटू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या लबेटलॉल, जो कि प्रेगनेंसी सेफ एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. दूसरी चीज ये कंट्रोल करना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, कोई किसी को पता है. एब्सोल्युटली. एंड देन हाइपरटेंशन का कारण क्या है, क्या वो किडनी डिजीज है, क्या वो कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए. इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली चालू होना चाहिए. सो आपके ECGs, इकोज, रीनल डॉपलर्स, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन के कारण कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो रखा है, आपका क्रिएटिनिन कंट्रोल है, आपके फंडस एग्जामिनेशंस ठीक हैं, ये सारी चीजें. तो हाइपरटेंशन कंट्रोल करके, प्रॉपरली डायग्नोज करके और मेडिसिन ऑप्टिमाइज करके प्रेगनेंसी करें. फिर सेकेंड पार्ट ये है कि क्या अगर हाइपरटेंशन हमने प्रेगनेंसी में डायग्नोज किया तो उसका क्या करना है. हाइपरटेंशन अगर प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते से पहले डायग्नोज हो रहा है तो अगेन उसको हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं. वेराज 20 हफ्ते के बाद डायग्नोज हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहा जाता है. रीडिंग्स जो है वो 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ऑन 2 occasions 4 hours apart. इट इज नॉट लाइक कि आप चलते हुए हॉस्पिटल गए और किसी ने आपका बीपी नाप लिया और रीडिंग आ गई 140/90 और आप हाइपरटेंसिव हैं. नहीं, ऐसे नहीं है. It has to be demonstrated on 2 occasions at least 4 hours apart. And then there is something which is known as white coat hypertension. आप स्ट्रेस में पहली बार हॉस्पिटल गए हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है. A good idea would be to check that blood pressure at home when you are peaceful, not doing anything strenuous. अच्छी ये पोर्टेबल मॉनिटर्स हैं, जैसे कि ओमरॉन का है, डॉक्टर मोरपेन का है, जॉनसन एंड जॉनसन का है. किसी मॉनिटर से घर पे बीपी नाप लें. और अगर फिर भी बीपी मॉनिटरिंग में 2 रीडिंग्स 140/90